অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন সুন্দরীদের খুঁচিয়ে বেড়ানোর স্বভাবটা ইমরানের আজও গেল না। ভারতবর্ষ একটি সুন্দর দেশ, তাকেও সময় অসময়ে খোঁচা দিয়ে চলেছেন দুষ্টু ছেলে ইমরান খান। আর রাম মন্দির প্রসঙ্গেও দুষ্টু ছেলের নানান কথা। একে কাশ্মীরের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ থেকে পাকিস্তানের এই দুষ্টু ছেলেটির মাথার মধ্যে কিন্তু ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। তার মধ্যে ভারতে আবার রাফাল এসছে। কি করবে দিশা খুঁজে পাচ্ছে না, মস্তিষ্ক কাজ করছে না। আনছান যা খুশি বলছে, তেমনি এই আনছান বলা থেকে বিরত থাকুন। রাম মন্দির মন্তব্যে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা ভারতের। নমস্কার, নিউজ 24 বাংলাতে আপনাদের আরও একবার স্বাগত। রাম মন্দিরে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে বুধবার ভারতের সমালোচনা করছিল পাকিস্তান। তারই 24 ঘন্টার মধ্যেই ইসলামাবাদকে কড়া জবাব দিল নয়াদিল্লি। ভারত স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে এটা দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়, এতে পাকিস্তানের অযথা নাক গলানোর প্রয়োজন নেই। বৃহস্পতিবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব পাকিস্তানকে যে বার্তা দিয়েছেন তাতে স্পষ্ট রাম মন্দির নির্মাণের মতন আভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে নয়াদিল্লি ইসলামাবাদের আগ বাড়িয়ে মন্তব্য মোটেও পছন্দ করছে না। এদিকে তিনি বলেন, ভারতের আভ্যন্তরীণ একটি বিষয় নিয়ে ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে কি লিখেছে তা আমরা দেখেছি। ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানো এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া থেকে তাদের বিরত থাকা উচিত। এখানে থামেননি অনুরাগ শ্রীবাস্তব। তিনি আরও বলেন, যে দেশ সীমান্তের ওপার থেকে সন্ত্রাস চালায়, যে দেশে সেখানকার ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ধর্মীয় অধিকার সুনিশ্চিত করে না, এখনও পর্যন্ত সেখানে মন্দির গুরুদুয়ার ভেঙে মসজিদ নির্মাণের চেষ্টা চালানো হচ্ছে, তাদের এই অবস্থান নেওয়া আশ্চর্যজনক কিচ্ছু নয়। এ ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক বলে জানিয়েছেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র। রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে কি বলেছিল পাকিস্তান? বুধবার ওই ঐতিহাসিক ঘটনার নিন্দা করেছিল ইসলামাবাদ। একই সঙ্গে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেওয়ার রায়কে ত্রুটিপূর্ণ বলে জানিয়েছেন পাক বিদেশ মন্ত্রক। তাদের মতে রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে রায় শুধুমাত্র সংখ্যাগুরুর বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে বিচার নয়, আজকের ভারতে সংখ্যাগুরুর প্রভাব বাড়তে থাকার বহিঃপ্রকাশও বটে। পাকিস্তানের অভিযোগ, ভারতের সংখ্যালঘুদের বিশেষ করে মুসলিমদের ধর্মস্থানে আক্রমণ বাড়ছে। পাকিস্তানের বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনায় নিন্দা প্রস্তাব পাশ করিয়েছে অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কোঅপারেশন OIC। তাদের আরও অভিযোগ, রাম মন্দির তৈরি হচ্ছে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র বানানোর কার্যক্রমের একটি অংশ। করোনা পরিস্থিতির মধ্যে এই সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন CAA নিয়ে বিতর্কের মধ্যে মন্দির নির্মাণ নিয়ে তৎপরতার জন্য ভারতকে দোষারোপ করেছে পাকিস্তান। সেই সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও তুলেছে তারা। প্রসঙ্গত, গতকালই জম্মু কাশ্মীর থেকে সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ প্রত্যাহারের 1 বছর পূর্ণ হল। অবশ্যই প্রথম নয়, গত কয়েক মাসের মধ্যে ওয়াঘার দুপারেই বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের অধিকার নিয়ে দুদেশের মধ্যে এমনই উত্তপ্ত আদান প্রদান বেশ কয়েকবার ঘটেছে। রাম মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন নিয়ে ফের সেই ছবি দেখা গেল পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। পাকিস্তানের দুষ্টু ছেলে যখন ব্যস্ত ভারতের সমালোচনা করতে, ঠিক তখনই তাঁরই দেশের একজন মেয়র কি বলছে তার সম্পর্কে একটু শুনে নিন, কারণ সে কথা শোনার পর আপনাকে হাসতে হবে অনেকক্ষণ। देखते থাকুন। कल का शुभ दिन जिसके हवाले से मैं कुछ बातें करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा खबर लूँगा हमारे पपेट प्राइम मिनिस्टर डोंकी किंग इमरान खान की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक नया नक्शा पेश किया है। मैं इमरान खान से ये कहूँगा कि ये युथियापे के काम तुम्हारी पूरी पार्टी तो कर ही रही है, और तुम उनके ज़ाहिर गुरु हो, गुरु घंटाल हो, तो तुम ज़्यादा करोगे। तुम जब तक रोज़ एक बेवकूफ़ी की ट्वीट या बयान ना दे दोगे तब तक तो तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता। तो थोड़ी कम लकीरें खींचा करो, आजकल बहुत ज़्यादा लकीरें खींचने लगे हो तुम। इमरान खान, बात दरअसल ये है कि अगर जितना तुम इंडिया के नक्शे पे और जियोग्राफी पे तुम फिक्र करते हो, इतनी फिक्र अगर तुम पाकिस्तानियों, अगर पाकिस्तान की जियोग्राफी की फिक्र करते ना, तो आज आधा पाकिस्तान लूज़ ना कर जाते।
55% पाकिस्तानी तो बांग्लादेशी बन गए हैं। बाकी जो पाकिस्तानी हैं, बलोच, पख्तून, मुहाजिर, सिंधी, सिराइकी, हिंद को, हज़ारा, वो सब तुमसे तंग हैं। पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी से सब तंग हैं। उनकी फिक्र कर लो तो ज़्यादा बेहतर ना होगा, बजाय इसके कि तुम इंडिया के जियोग्राफी की फिक्र करते हो। जो मिला हुआ है वो संभाला नहीं जा रहा, उनका बेड़ा गर्क किया हुआ है, उनको मारे जा रहे हो, उनको मिसिंग पर्सन की लिस्ट बढ़ाए जा रहे हो, उनके घरों पे कब्जे कर रहे हो, उनको जीने का हक नहीं दे रहे। और जो बचे हैं तुम्हारे अपने बूट चाट वाले भी, उनको भी ना पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना बेसिक ह्यूमन नीड्स की चीज़ें हैं। फिक्र तुम्हें इंडिया की है, कुछ शर्म कर। थोड़ी बहुत भी गैरत है, लेकिन इस आदमी के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इसमें गैरत कहाँ से आएगी। मैं आपको बताता हूं, इसका बाप सरकारी ऑफिसर था। करप्शन के इल्ज़ाम पे इसके बाप को भुट्टो ने सरकारी नौकरी से निकाला था। मुझे एक बात बताएं, एक सरकारी नौकरी करने वाला एक आम आदमी, इसका बाप, कि जिसकी बीवी कैंसर की मरीज थी, इनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ने जा रहे हैं। और ऑक्सफोर्ड में ये क्या करता था, ये कुछ अय्याश बरतानवी बूढ़ी खवातीन की अय्याशी का सामान था। इसके बारे में मशहूर था। बल्कि इसने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसकी माँ इसकी गर्लफ्रेंड रही है। ये सब हकीकतें मौजूद हैं, आपको हिस्ट्री की बुक्स में मिल जाएंगी। और कुछ नहीं तो रहम खान की किताब में आप चले जाएं तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। इस आदमी का पर्सनल कैरेक्टर ये है, आज तक, ये नहीं कि तब, आज तक पीरनी साहब से दम कराने जाता था। पीरनी साहब का शौहर बेचारा कमरा छोड़ के चला जाता था कि चलो मुरीद आया है, उसके बेटे की जगह है या उसके भाई की जगह है। पता चला वो बाहर ही रह गया बेचारा, पीरनी को भी लेकर उड़े। तो ये तो इनकी औकातें और हरकतें हैं। दोस्तों को नवाजा है, इसमें एक क्वालिटी है कि ज़िंदगी में, क्योंकि 92 के बाद से ये जॉबलेस है, लेकिन ज़िंदगी 5 स्टार गुजारता था। कराची में, इस्लामाबाद में बंगला, लाहौर में बंगला, लंदन में बंगला, हर जगह काम टके का नहीं किया 92 के बाद। भाई आप रिकी पॉन्टिंग को देखें, उसने कितने वर्ल्ड कप जीते, कितनी चीज़ें जीती। आज भी बेचारा कहीं कोचिंग कर रहा होता है तो कहीं कमेंट्री कर रहे होते हैं, तो सब अपना काम, इसने कभी कुछ काम नहीं किया। ये हराम के पैसे पे सारी जिंदगी रहा है। तो जो जो इसको काम में आए ना, उन सबको इसने नवाजा। जिसमें लेटेस्ट है ये इसका हेल्थ एडवाइज़र जो कल इसने मुकर्रर किया है, ये शौकत खानम हॉस्पिटल, जो कि इसने पाकिस्तान और दुनिया भर के आवाम से लूट के पैसा, ये कमर्शियल एंटिटी कायम की है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये फ्री में इलाज करते हैं। कोई फ्री में इलाज नहीं करता। पाकिस्तान का सबसे महंगा कोरोना टेस्ट ये कर रहे हैं। पूरे पाकिस्तान की चैरिटी ये खा जाते हैं। पहले तो दूसरी भी जब को पार्टियों को मिल जाता था, अब तो आर्मी की सारी चैरिटी या आर्मी के इदारों को जाती है या पीटीआई की उसको जाती है। लूटमार, चोरी, डाका अपने दोस्त इसके सारे कर रहे हैं इस वक्त। फैसल वावड़े को ले लें, इस आदमी की 2 टके की औकात है। इसका कैरेक्टर मैं पर्सनली जानता हूँ। इसके बारे में मैं मतलब बोलूँगा तो ये यूट्यूब में बोल नहीं सकता पब्लिकली। इतना गंदा कैरेक्टर का आदमी है, घटिया तरीन। और ये एक नहीं, अली जैदी ले लें, इमरान को ले लें, डॉक्टर इमरान अली शाह, ये सब के घटिया कैरेक्टर। मैं पर्सनली इन सबको जानता हूँ। तो इमरान खान अपनी फिक्र करो। जूनागढ़ जिसकी तुम बात कर रहे हो ना, जूनागढ़ पे 17 हमले तो तुम्हारे पिताजी ने किए थे, महमूद गजनवी ने। बाल भी नहीं उखाड़ सके हो तुम जूनागढ़ का। जूनागढ़ हिंदू था, इंडियन था। जूनागढ़ हिंदू है, इंडियन है, और जूनागढ़ हिंदू रहेगा और इंडियन रहेगा। और बहुत जल्द नक्शे की जब आप बात करते हो ना तुम, तो बहुत जल्द नक्शे की तब्दीली तो पाकिस्तान के नक्शे की तब्दीली होने वाली है। और अब वक्त आ गया है इमरान खान, अब वक्त आ गया है। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, दुआ करूंगा, पूरी दुनिया में कैंपेन चलाऊंगा कि तुमको और तुम्हारे इन बाजवों को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वार क्राइम्स के तौर पे पेश किया जाएगा। आगे आता हूं मैं। कल एक मुबारक दिन है, एक बहुत ही ज़रूरी काम होने जा रहा है। मेरी खुशी का मैं अंदाज़ा नहीं बता सकता, क्योंकि ये मुसलमानों की भी भलाई का काम है। मैं बार बार कह रहा हूं कि कब्ज़े की नाजायज़ जगह पे मस्जिद हराम है, उसमें की जाने वाली इबादत हराम है। तो ये मुसलमानों का भी भला है। पहला स्टेप है। आई विल बी हैप्पी
कि इंडिया के ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी जितने मंदिर गुरुद्वारे तबाह किए गए हैं वो रिस्टोर हो जाएं। मामूली मिसाल दूंगा कि जब मैं कराची में जमशेद टाउन का मेयर था, तो जमशेद टाउन में दुनिया में जो 4 पुराने तरीन मंदिर हैं उसमें से एक कराची के जमशेद टाउन में था, श्री पंच हनुमान मंदिर। अभी मुझे कहीं से खबर मिली है कि ये पिछले साल या इससे पिछले साल, कुछ सालों पहले वहाँ से एक मूर्ति निकली है जो कई हज़ार साल पुरानी है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसको स्टडी कर रहा है, लेकिन ये खबरें दबा देते हैं। आपको जर्मनी में एक जगह आर्कियोलॉजिकल साइट पे शिवलिंगम मिला है, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में। बार बार साबित हो रहा है कि यही सबसे पुराना धर्म है। मुझे एक पुराना धर्म या पुराना मुल्क इंडिया के अलावा बता दें जो इंडिया से ज़्यादा पुराना हो या हिंदू धर्म से पुराना धर्म हो, कोई एक बता दें। ये इनकी सर्वाइवल, इनकी सच्चाई है। अयोध्या के हवाले से मैं मुबारकबाद दूंगा अगेन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को, ख़ास तौर पे मुसलमानों को। यहाँ पे भी मुझे कई लोग वो कह रहे हैं कि आरिफ भाई ये कोई फैज़ साहब हैं जो पद यात्रा करके जा रहे हैं और उधर, तो आप सपोर्ट करें उसको। तो देखें, मैं यहाँ पे सपोर्ट करता हूँ अपने हिंदू भाई बहनों को। क्यों कि ये इनके लिए एक बहुत ज़रूरी मकाम है, बहुत ज़रूरी स्टेप है। और जिस तरह मुसलमानों ने बार बार पीठ मारे में छुरे मारे हैं और मुसलमानों के इन्वेडर्स ने यहाँ पे कत्लो गारत की है, तो शर्म से डूब मर जाना चाहिए उन मुसलमान लिखारियों को जो आज अयोध्या के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं। उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। होना तो ये चाहिए कि आओ हिंदुस्तान, पाकिस्तान के तमाम मुसलमानों मिल के अपने हिंदू भाई बहनों से माफ़ी मांगे कि हम लोगों ने हमने तो नहीं, लेकिन हमारे कम्युनिटी के जो इन्वेडर्स थे उन्होंने इस देश पे, इस देश के वासियों से बहुत ज़्यादा जुल्म किया है। हमें माफ़ी मांगनी चाहिए इनसे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कदर करो जो तुम्हें ये लोग मिले हैं। अगर तुम्हारे जैसे तुमको मिलते ना तो पता चल जाता। तो फैज़ साहब हो या कोई भी हो, मैं यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से हूँ कि हम सॉलिडरिटी तो दिखाएं। हम जितनी सॉलिडरिटी बातचीत के ज़रिए वो कर सकते हैं, लेकिन उस रिलीजियस अफेयर्स में हमें पर्सनली इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। लेट हिंदूज सेलिब्रेट दिस फ्रीली। और ये है कि हमारी सॉलिडरिटी उनके साथ होनी चाहिए, हमारा सपोर्ट होना चाहिए। और अगर किसी को अयोध्या मंदिर में जाना है तो बाद में जा सकता है ना, ज़रूरी कल ही जाए। कल एक इतना सैक्रेड दिन है, इतना इम्पोर्टेंट दिन है, तो उस हवाले से मैं चाहता हूँ कि हम हिंदू कम्युनिटी का पूरा उनकी खुशियों में शरीक ज़रूर हों, लेकिन फिज़िकली लेट देम बी देयर। ये मेरी अपनी राय है। बाकी ये है कि खुशी मुझे सही मानों में उस वक्त होगी जब इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान रीजन में जहाँ जहाँ जो जो मंदिर था, जो जो गुरुद्वारा था, वो रिस्टोर हो जाता है। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं होगी। एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी मैं चाहूँगा कि बहुत जल्द रिपैट्रिएशन ऑफ कश्मीरी पंडिट्स हो जाना चाहिए और उनको एक सेफ एनवायरनमेंट दिया जाए और उनकी लूटी हुई रिलीजियस एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिस्टोर करके इनके हवाले की जाएं। आखिरी बात मैं एक छोटी सी करना चाहूँगा, जो कल हमारे साथ, मेरे साथ और कुछ मुसलमानों के साथ जो हमारे पाकिस्तानी भाई सलूक कर रहे हैं, उस हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि कल ये राखी की जब मैंने तस्वीर लगाई है तो फेसबुक पे एक कामरान सिद्दीकी साहब हैं, उन्होंने मेरे बारे में जो लिखना था लिखा। फिर इसके नीचे 50 कमेंट्स जिसमें इन्होंने मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी, मेरे ख़ानदान, मैं, हिंदू, इंडिया, सबके गालम गलोच। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये जिसने लगाई है ना, ये मेरा कॉलीग था, MQM का था, 20 साल
मैंने एमक्यूएम में काम किया है और ऑनेस्टली काम किया है, जब भी आप देख रहे हैं कि मेरे क्या हाल हैं, वरना सारे एमक्यूएम वाले अरबपति हैं। ये जो करंट मेयर ऑफ कराची है ना, जिसके ये कामरान सिद्दीकी जिसका वो है, ये कंगला आदमी का मेयर ऑफ कराची, आज दुबई में इसका बेटा मिलियंस ऑफ डॉलर के बिजनेस कर रहा है। ये जिस गाड़ी में घूम रहा है ना, 5 करोड़ की गाड़ी में आता है, इसको तो उस नाले में शर्म से डूब मरना चाहिए जो भरे हुए हैं अब तक कराची में। ये जितने वहाँ पे पाकिस्तान, ये जो जिन्होंने नीचे कमेंट किया है ना मेरे खिलाफ या मेरे फैमिली के खिलाफ, इनमें से एक एक को पर्सनली जानता हूँ। मैं हैरान रह गया, ये ज़्यादातर मेरे फ्रेंड लिस्ट में भी थे। मैं हैरान रह गया कि इनके अंदर की मुनाफकत। ये 20-25 साल इस पार्टी में रहे हैं जिसका लीडर अल्ताफ़ हुसैन सबसे बड़ा सेक्युलर था पाकिस्तान का है। इसके बावजूद इनका, तो मुझे इनका गम नहीं है। ये कामरान सिद्दीकी है ना, ये कौन है मैं ज़रा आपको बता दूँ। इसको उठा के ले गए थे रेंजर्स वाले, 90 दिन अंदर रहा। अंदर ये क्या करते थे कि इसको नंगा रखा 90 दिन, और इसके ऊपर सुबह शाम सेक्सुअल टॉर्चर होता था। फिर इसकी वीडियोस बनाई, फिर इसकी फैमिली की औरतों को उठाया, उनके साथ जो किया, फिर उसकी वीडियोस बनाई। तो फिर कामरान सिद्दीकी को जो इशारा मिलेगा वो वही करेगा ना। तो मुझे इसका गम नहीं है, मुझे पता है कि ये किस दौर से गुजर रहा है। तो आर्मी रेंजर्स यही हरकतें हमारे खिलाफ करती है, तो वो कामरान सिद्दीकी ने किया। नीचे जो कमेंट्स में लोग हैं ना, मैं वो लोग सब सुनते हैं मेरी वीडियो। ये इतने बेगैरत मुनाफिक हैं कि सब मेरी फ्रेंड लिस्टों में अलग अलग नामों से होते हैं, मेरी एक एक वीडियो को सुनते हैं। अंदर से इनकी आग लगी हुई है। क्यों? इसलिए कि ये बेचारे वहाँ पे रेंजर्स के गुलाम हो गए ना, क्योंकि वीडियो बन गई ख़ानदान की, अपनी बीवी की या बहन की या बेटियों की वीडियो बन गई, टोटल ग़ुलामी में चले गए। तो मुझे इनका इतना ज़्यादा गम नहीं है। मुझे पता है कि तुम लोग अपनी मजबूरी में मेरे ख़िलाफ़ ये सब कर रहे हो, तो क्या करें अब तुम लोगों को तो सारी ज़िंदगी तो अंदाज़ा हुआ कि किस तरह ये काम करती है फ़ौज। तो और बाकी यहाँ वो जो पाकिस्तान में इस वक्त ये इनके एमक्यूएम पाकिस्तान के नाम से जो एक पार्टी है ना, ये बूट चाट पार्टी, इसके तमाम लीडर भी अंदर 90 दिन की ज़ियारत करके आए हैं। जैसे ये पीटीआई का आमिर लियाकत, उसने तो, उसको पूछा गया था बाकायदा कि आपके साथ वहाँ पे सेक्सुअल टॉर्चर हुआ? कहते नहीं, मुझे तो उन्होंने दाल चावल खिलाए थे। तो जाहिर है वो उसके बाद दाल चावल ही खिलाएंगे ना वो सब करने के बाद। तो ये सब दाल चावल खाए हुए लोग हैं ना जो पाकिस्तान में, वरना तो वो पाकिस्तान से निकल जाते तो इंसान के बच्चे बन जाते, लेकिन वो बेचारे फंस गए। तो इनको तो पूरा ख़ानदान, ये खुद सिर्फ ग़ुलामी में है रेंजर्स की। जब बुलाते हैं तो हाँ जी, बल्कि ऐसा भी होता है कि जब इनके घरों पर रेंजर्स आती है तो ये कहते हैं कि आप अंदर आराम से जो करना है कर लें, हम बाहर खड़े वेट कर रहे हैं। और ये कामरान सिद्दीकी के पिक्चर के नीचे, जो मेरी पिक्चर इसने लगाई है, इसके नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, उसमें ज़्यादातर वो लोग हैं एमक्यूएम के, वो लोग जिनको हम एमक्यूएम के शहीद कहते हैं, जिन्होंने अपनी जान दी थी ऑपरेशन के दौरान इस मुहाजिर कोज़ के लिए। उनकी माँओं बहनों की इज्जतें लूटे हैं। ये नीचे जो कमेंट्स कर रहे हैं ना, इनमें ज़्यादातर सेक्टर और यूनिटों में बैठते थे, पूरे मोहल्ले की इज्जतों का बेड़ा गर्क करते थे। और फितरा, ज़कात, कुर्बानी की खालें, इन जितनी भी एमक्यूएम की चैरिटी होती थी, इसमें से ये डंडी मारने वाले लोग हैं। इनकी ज़िंदगियाँ खैरात और ज़कात के पैसे पे निकली है, तो ये ऐसी ही हरकतें करेंगे। আপনার শহর হোক কিংবা রাজ্য, দেশ হোক কিংবা বহির্বিশ্ব, সব খবর সবার আগে পেতে আমাদের চ্যানেল নিউজ 24 বাংলা সাবস্ক্রাইব করুন। আর সবার আগে নোটিফিকেশন পেতে পাশে থাকা বেল বাটন প্রেস করতে একদম ভুলবেন না।